ویلکم بیک اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چونیا اسپائر کالج میں یوم ستائش کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسپائر کالج چونیا کیمپس میں یوم ستائش کے حوالے سے عالی شان تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کالج کے پوزیشن ہولڈرز اور علاقہ بھر میں نمایاں نمبرز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب میں تمام بچوں کو تعریفی اسناد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یوم ستائش کی پروقار تقریب میں سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں موجود شخصیات نے اسپائر کیمپس چونیا کی تعلیمی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ حاضرین محفل کا کہنا تھا کہ اسپائر کیمپس چونیا نے علاقے بھر کے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو کالج میں مدعو کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اسپائر کالج چونیا میں بہترین فیکلٹی ہمارا حصہ ہے اور ایم فل پی ایچ ڈی لیول بہترین کالجز میں پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ ہمارا حصہ ہیں، اور اسی کی بدولت ہمارے کالج کے جو رزلٹس ہیں وہ شاندار، اور ہمارے بچوں نے اچھی اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی لیا ہے۔ میں آج یوم ستائش کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ جو ہم نے یوم ستائش فنکشن اسپائر کالج میں رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں بچوں کی اپریسیشن کی جائے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، آنے والے بھی بچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ ہم اس ادارے میں جائیں گے تو ہمیں اچھی تعلیم ملے گی۔ اور یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت اچھا بچوں کو ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو لیب کا انتظام کیا گیا، ان میں الحمدللہ 3 دن، ایک ہفتے میں 3 دنوں کے لیے ہمیں لیب میں لگوایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان میں پرفارم کر کے بتایا جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنی مرضی کا پرفارم کر کے دیکھتا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ سیکھتا ہے کہ کس طرح ہم نے پرفارم کرنا، کس طرح نہیں کرنا ہے۔ چونیا کے انتخاب کے چونیا اسپائر کالج چونیا کیمپس میں نے انتخاب کیا۔ میں نے یہاں کا وزٹ کیا، وزٹ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا فیوچر یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں کا ماحول دیکھا، میں نے رومز دیکھے، رومز میں ہمارے اسٹڈی کے مطابق تھے، وہاں اے سی بھی موجود تھا۔ بھوانہ میں تھانہ بھوانہ پولیس کے سب انسپکٹر اعجاز احمد کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم کو 2 سال بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجرم اشتہاری مختار نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ رقبہ کے تنازع پر ایک شخص کو قتل اور 4 افراد کو زخمی کیا تھا۔ واقعے کی بابت مجرم اشتہاری اور ساتھیوں کے خلاف تھانہ بھوانہ میں قتل سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ اشتہاری مجرم مختار ولد عبد الرحمان کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون امیدوار پی پی 105 راؤ کاشف رحیم کا کہنا ہے کہ تحصیل سمندری سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اسمال انڈسٹری زون کی منظوری سمیت دیگر مؤثر اقدامات اٹھانا اولین ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون ملک بھر کی طرح تحصیل سمندری سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ راؤ کاشف رحیم کا کہنا تھا کہ 3 الیکشنز میں ٹکٹ کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن ہر الیکشن میں پارٹی قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا اور ٹکٹ دیا۔ اب چوتھی بار بھی مجھے ہی ٹکٹ ملے گا اور انشاءاللہ الیکشن جیتوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں مفاہمت کی سیاست کا قائل ہوں، اگر کسی نے 1 قدم بڑھایا تو 2 قدم بڑھاؤں گا، اگر 1 قدم پیچھے ہٹیں گے تو میں بھی پیچھے ہٹنے میں دیر نہیں کروں گا۔ پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں، پارٹی نے جس سیٹ سے بھی الیکشن لڑنے کی ہدایت کی اس پر مکمل عمل درآمد کروں گا۔ جھنڈ میں جماعت اہل حرم پاکستان وومن ونگ کی جانب سے حمایت اہل غزہ کانفرنس بارروم جھنڈ میں منعقد ہوئی ہے، جس میں تمام مذہبی تنظیموں اور علاقہ بھر کی خواتین نے بھرپور شرکت کی ہے۔ کانفرنس کا مقصد غزہ کے مظلوم خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ کانفرنس میں تمام مذہبی جماعتوں اور علاقے کی خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ صدر وومن ونگ جماعت اہل حرم شائیہ گلزار اور جماعت اہل حرم کی بانی پرنسپل جامع نعیمیہ اسلام آباد مفتی گلزار احمد نعیمی اور ملی یکجہتی پاکستان کے ترجمان جماعت اسلامی عائشہ کوثر، مرتضی ڈائریکٹر البصیرہ، صدر ضلع اٹک مجلس وحدت المسلمین ڈاکٹر عائشہ مظہر، جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ نجمہ شاہین، پرنسپل جامع فاطمہ تو زہرا نظامت میمونہ یعقوب نے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی عورتوں کی عزم اور ہمت کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا عزم کیا۔
اور اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کانفرنس میں شرکاء خواتین نے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف الفاظ درج کیے گئے تھے۔ ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر پاک پتن محمد امین کے زیر نگرانی انچارج ٹریفک ایجوکیشن یونٹ زہیب شبیر گورنمنٹ ہائی اسکول ملکہ ہانس میں طلبہ کو کم عمر ڈرائیونگ، ہیلمٹ کی افادیت، اسموک اور ٹریفک قوانین پر آگاہی اور لیکچر فراہم کیے گئے۔ پاک پتن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک امین کاٹھیا کی جانب سے زہیب بلوچ نے ملکہ ہانس کے اسکول میں کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ سے روکنے، اسموک سے بچنے اور ہیلمٹ کے استعمال کے حوالے سے اہم بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انچارج ایجوکیشن یونٹ زہیب خان کا کہنا تھا کہ کم عمر بچے ڈرائیونگ ہرگز نہ کریں۔ صفدر آباد پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن، ڈرگ ڈیلرز گرفتار، بھاری مقدار میں شراب، چرس اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ڈی پی او شیخ پورہ زاہد نواز مروت کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد نوید احسن ویرک اور اے ایس آئی اختر گجر نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے صفدر آباد کے علاقے محلہ سعید نگر، ڈھابا کلاں، شفیق نگر کے علاقے میں بھی سرچ آپریشن کیا اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ صفدر آباد پولیس نے ڈرگ ڈیلر سے بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں، چرس اور ایک کلاشن کو برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کہرول پکا کے نواحی علاقے رنجادہ میں قدرتی طور پر بکری کی طرح 2 تھنوں والی نایاب بھینس کی دھوم مچ گئی ہے۔ شہری اور جانور پالنے کے شوقین حضرات دور دراز سے نایاب قدرت کی طرف سے 2 تھنوں والی بھینس کو دیکھنے پہنچ گئے۔ کوئی خدا کی قدرت دیکھ کر خوش ہوتا رہا تو کوئی بھینس کے بھاؤ تھاؤ کرتا رہا۔ مزید دیکھتے ہیں کہرول پکا سے حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ کہرول پکا کے نواحی علاقے رند جادہ میں بکری کی طرح 2 تھنوں والی نایاب بھینس کی دھوم مچ گئی۔ شہری اور جانور پالنے کے شوقین حضرات دور دراز سے نایاب قدرت کی طرف سے 2 تھنوں والی بھینس دیکھنے پہنچ گئے۔ کوئی خدا کی قدرت دیکھ کر خوش ہوتا رہا تو کوئی بھینس کے بھاؤ تو لگاتا رہا۔ بھینس کے مالک نے بھی بھینس کی 7 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دی۔ میں چھوٹی جی کٹی ہے گنا میں منڈی تو 28,000 دی تے ہونی کو پالا ہے شوق نال ہوں ادھر لاوا چھوٹی بنی ہے جڑے والی تھوڑے وپاری آدھے بھی دے تو ساکو ڈوٹھنی ہے ساکو دے تو یا کوئی 3 لاکھ دا کوئی 3.5 دا کوئی 2.5 دا میں کدی نہیں دینا ہوں ماشاءاللہ تیار تھی کھڑی ہے ہوں ات والے وپاری دے رہے نا وہ کوئی 4 لاکھ دے کوئی 3.5 دے کوئی 4.5 دے ماشاءاللہ ٹھیک بڑی سونی ہے اللہ دی رحمت ہے بڑی دیکھ تے خوش تھی گئے ماشاءاللہ بڑا ودے نظام ہے بہتر اللہ کا کام گزر کرے سونے کرے۔ السلام علیکم یار اساں مانچری تھی 2 تھنا والے اللہ دا بڑا فیض ہے، اللہ دی بڑی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ دے بڑے رنگ ہیں اور ایک 2 تھنا والی مانچ دیکھتے اساں بڑے خوش تھے ہیں۔ ہی واسطے لوگوں کو سن دیا سے بھی 2 تھنی ہے، اساں خود آ کے دیکھی ہے تھوڑے سامنے کھڑی ہے اور دیکھن دی بھی سونی ہے تے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کائنات تے بڑیاں چیزاں پیدا کریں دے اور کر بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور اس طرح کے کئی قدرت کے رنگ دکھائے ہیں، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو 1 نیوز، کہرول پکا۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں تھانہ گجر پورہ کی حدود میں دکاندار کو تھانہ ایس ایچ او کے کارخاص کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ساتھ دکان سے 2,80,000 کی رقم بھی لے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے میاں نعمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان بتائیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ گجر پورہ کی حدود میں، جہاں پر جو ہے
SHO गुज्जरपुरा के काड़े ख़ास की जानिब से जो है वो एक दुकानदार को जुल्म का निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरी जानिब IG पंजाब के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा क्या आपके साथ क्या जुल्म जो है वो ढाया गया है? सर, उस दिन इस तरह हुआ है कि हमने दुकान बंद कर ली है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था दुकान बंद किए को। इसी तरह तकरीबन 4 से 5 मोटरसाइकिलों पे आते हैं वो, जिसके अंदर ज़ुबैर गुज्जर कार खास है और उसके साथ सिविल में 4 बंदे थे और 2 वर्दी में मौजूद थे। उन्होंने आके, हम दुकान बंद करके चले गए, मैं आके दूध वाली दुकान से दूध ले रहा हूँ तो उन्होंने आके मुझे पकड़ा और आके तो वहाँ पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। चौंक में थप्पड़ मारे और कहा मुझे कि दुकान खोलो। दुकान खोली है। दुकान खोलते वक्त ही उन्होंने साथ ही मुझे ज़ुबैर गुज्जर ने कहा जितने भी पैसे हैं ना सारे अपने शापर में डालो। उसके साथ जो मुलाजिम खड़ा था वो भी यही अल्फाज कह रहा था कि यार पैसे डालो नहीं तो हम अंदर आके तुम्हें मज़ीद और मारेंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। इस तरह उन्होंने हमें ना तशद्दुद का बड़ा ना निशाना बनाया है। जिसमें ये बताइएगा अंदर से आपकी दुकान से कैश कितना जो है लेके गए? लगभग तकरीबन 2,80,000 रुपया मेरे पास उस टाइम कैश मौजूद था, जिसमें कमेटी के भी पैसे मौजूद थे। कुछ सेल के पैसे थे, कुछ कमेटी के पैसे थे। 2,80,000 रुपया मेरे पास उस टाइम मौजूद था दुकान के अंदर। लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके पैसे शापर में डाला, लेकिन ज़ुबैर गुज्जर ने नीचे डाला रखा है। थोड़ा सा ऊंचा आके उसने मुझे ये कहा कि सारे पैसे डालो नहीं तो अंदर आके तुम्हारी टांगे भी तोड़ूंगा और तुम्हारा सारा मुंह भी फाड़ूंगा। इस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया और जितने भी पैसे थे यहाँ से सारे वो ले गए हैं। और पैसे डाल रहा मैं था और मैंने खुद बाकायदा ज़ुबैर गुज्जर के हैंड ओवर किए थे ये सारे पैसे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने दुकानदार की जो है वो जो इनके ऊपर जुल्म ढाया गया वो आपने सुना। इनकी यही अपील है IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि इन्हें जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए। जी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने हल्का ऐन हारूनाबाद फोर्ट अब्बास मरवत से आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का ऐन 163 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। पैनल का ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने चौधरी खालिद हुसैन बाट और आमिर शबीर के हमरा बंदन हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में किसानों की आवाज़ बनकर मुल्क भर की ज़राअत पेशा आबादी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत के शुबे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इस सबसे अहम तबका के लोगों की भी कौमी असम्बली के फॉर्म पर मौसर नुमाइंदगी की अशद ज़रूरत है। और हमने इस सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए अमली तौर पर किसानों की आवाज़ बनने का अज़म कर लिया है और अब मुल्क भर के किसानों के लिए जदोजहद हमारी सियासत का बुनियादी मरकज़ व महवर होगी। हल्का N 163 हारूनाबाद फोर्ट अब्बास मरोड़ बुनियादी तौर पर किसानों की कसीर आबादी का हल्का है और न सिर्फ इस हल्के की पसमानदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे, इस वक्त किसान और ज़राअत को इसका हकीकी मानों में हकूक़ के हसूल के लिए अमली काम किया जाएगा। माजी में भी अवामी खिदमत की है और अब इस खिदमत का दायरा कार मज़ीद वसी तर तनाज़र में विज़न किए तौर पर पेश किया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं और अरकान राब्ता कमेटी के रहनुमाओं का कहना है कि हल्का बंदियों में जानिबदारी का मुज़ाहरा किया गया है। बल्दियाती इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन 2024 की हल्का बंदियों पर शब खून मारा गया है। MQM रहनुमा सुहेल मशदी का कहना था कि हैदराबाद के शहरी इलाकों के हलकों में टाउन कमेटी को शामिल करके रूल्स के खिलाफ वर्जी की गई है। पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता निसार दुरानी मेंबर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की सुनवाई में जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। MQM पाकिस्तान के होते हुए सिंधु देश नहीं बन सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से किरदार अदा कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करने जा रही है। सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। MQM के साथियों को शौक नहीं कि उनके भाई हल्के नहीं, सूबाई सतह और वफाकी सतह पर जानिबदारी हो रही है। इस इलेक्शन के बाद सिंधु देश बनता नजर आ रहा है। वो विफाक और अफवाज पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे। मीरपुर ख़ास अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान सिंध की जानिब से अपनी बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मुस्तहिक अफराद में CNG रिक्शे, चिंचियाँ और रेढ़े ठेले तकसीम किए गए हैं। मीरपुर ख़ास में मुस्तहिक बेरोज़गार अफराद के लिए अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान
سندھ اور میرپور خاص کی جانب سے روزگار اسکیم کے تحت تقریب مفت تربیتی سلائی سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں معروف سماجی اور سیاسی شخصیات، صوبائی صدر انجمن ارائیاں پاکستان سندھ افتخار احمد ارائیں، کوارڈینیٹر سندھ عرفان عالم ارائیں، ڈویژنل صدر انجمن ارائیاں میرپور خاص چوہدری نذیر احمد پردیسی۔ تقریب میں ملک شفاء اللہ افغان اور چوہدری محمد رفیق ارائیں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 8 چنگچی رکشے اور CNG رکشوں کی چابیاں بے روزگار مستحق افراد کے حوالے کی گئیں اور 12 ٹھیلے بھی ضرورت مند بے روزگار افراد کے حوالے کیے گئے۔ صدر انجمن ارائیاں سندھ افتخار احمد ارائیں نے بتایا کہ ان کی انجمن ملک بھر میں اپنی برادری کے ساتھ ساتھ بغیر رنگ و نسل مذہب کے مستحق ضرورت مند بے روزگار افراد کی مدد کر رہی ہے، اور سندھ کے مختلف شہروں میں خواتین کو سلائی کڑھائی کا ہنر سکھانے والے سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ ایمبولینس سروسز، دسترخوان اور روزگار اسکیم بھی شامل ہیں۔ دو ہزار 12 میں سندھ حکومت کی جانب سے منظور شدہ ٹھل میں کروڑوں کے بجٹ کا میگا پروجیکٹ واٹر سپلائی کی اسکیم تاحال بحال نہ ہو سکا ہے، جس کے باعث شہری آلودہ اور کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آلودہ پانی پینے سے شہری پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے عمران علی سے۔ یہاں اس وقت میں موجود ہوں ٹھل کی واٹر سپلائی اسکیم پر۔ واٹر سپلائی اسکیم گزشتہ کئی سال گزر گئے لیکن ٹھل کو میٹھا پانی نہ مل سکا، نہ ہی واٹر سپلائی اسکیم مکمل کی گئی۔ 2012 میں یہ منظور کی گئی اسکیم، جو کہ سال گزر گئے ہیں، ٹھل کے شہریوں کو اب بھی میٹھا پانی نہیں مل سکا۔ ٹھل کے شہری اب بھی کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم کھارا پانی پینے سے ہمارے بچے بڑے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں نگران حکومت سے کہ جلد سے جلد واٹر سپلائی اسکیم کا کام مکمل کیا جائے۔ جی بھاولپور میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار دی بلائنڈز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بھاولپور ظہیر انور جبہ تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد اشتیاق، پرنسپل ارم اقبال، بینڈ ٹیچر سید محمد سلمان بخاری سمیت سول سوسائٹی کے نمائندگان اور نابینا طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں نابینا طلباء و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیبلوز، لوک گیت اور انتہائی شاندار انداز میں ثقافتی رقص پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر بھاولپور ظہیر انور جبہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہت جلد نابینا افراد کے لیے ایک میگا ایونٹ کا انعقاد کرائے گی۔ تقریب کے آخر میں ادارہ حضا کے طلبہ محمد شاہ زیب، ظفر اقبال اور معین اسلم کو ورلڈ بلائنڈ گیم میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سعادتآباد میں سردیوں کی سوغات دودھ جلیبی شہریوں کی پسندیدہ سوغات بن گئی ہے۔ صحت کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی بہترین ہے۔ مزید جانتے ہیں سعادتآباد سے ہمارے نمائندے عتیق گورائیہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سعادتآباد کے شہریوں نے سردی کے ساتھ ساتھ اپنے ذائقے کو بھی تازہ کرنے کے لیے دودھ جلیبی پینے کی طرف کا رخ کیا ہے۔ سعادتآباد میں بنائی گئی یہ دودھ جلیبی صحت مند زندگی کے لیے ضروری مفید بتائی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ سر یہ سردیوں کا یہ سوغات ہے دودھ جلیبی۔ ہم بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلے ہیں تو آج سعادتآباد میں بہت دھند پڑی ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو کافی لوگ تعداد میں لوگ دودھ پینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کا دودھ بہت اچھا ہے، خالص ہے۔ جی دودھ جلیبی سردیوں کی سوغات ہے۔ نہر اور کیسا چاول نظر نہر والا پول، اور اتنے آؤ دودھ بھی ایک نمبر، جلیبی بھی ایک نمبر۔ السلام علیکم سر۔ جی سر یہ دودھ ہے بہت اچھا ہے، بہت خالص دودھ بناتے ہیں شہباز بھائی، اور ان کا دودھ لائن میں لگ کے سر سیل ہوتا ہے۔ میں بہت دور سے ان کا دودھ روز پینے کے لیے آتا ہوں۔ یہ سردیوں کی بہت اچھی سوغات ہے، آپ بھی انشاءاللہ چکر لگایا کیا؟ یہ میں نے دودھ لگایا ہوا ہے، یہ سردیوں کی بہترین سوغات ہے اور الحمدللہ خالص دودھ ہوتا ہے۔ اس میں بادام، چھوارا، انجیر، کھوپرا، شکر استعمال کرتا ہوں۔ میرے بھائی جو بھی ادھر آتے ہیں ایک بار پیتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں دوبارہ پینے کے لیے۔ پچھلے سیزن میں نے اسٹارٹ کیا تھا، اس سیزن میں میرا 2 سیزن ہے یہ،
तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि खालिस चीज़ है और आपकी सेहत के लिए मुफीद है। बादाम, अखरोट, अंजीर के साथ तैयार किया हुआ ये दूध जलेबी सेहतमंद जिंदगी के साथ साथ आपके ज़ायके को भी बरकरार रखता है। कैमरामैन टीम के साथ अतीक गुराय, मेट्रो वन न्यूज़ साथ। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि बहावल नगर पंजाब का सबसे बड़ा ज़िले रेलवे जंक्शन से महरूम हो गया है। गुज़श्ता 17 साल गुजरने के बाद भी जंक्शन का कोई काम ना हो सका। हुकूमतें गुजरती गईं लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ ना सोचा। रेलवे खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विर्क से। जी हाँ, बिल्कुल। बहावल नगर पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला गिना जाता है। अगर देखा जाए, रेलवे की बात की जाए तो रेलवे का कभी ये बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था जहां बहुत हुआ करती थी। अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के रेलवे जंक्शन पर, जहां पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके इस बारे में क्या कहना है। जी सर, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, लाहौर लेवल का ये जंक्शन था, इंडिया जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर हू का समाए और नशाई वगैरह नशा बेचते भी हैं और लोहा भी चोरी करते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर ये जंक्शन दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए तो जो वकला हजरात हैं, जो मुसाफिर हैं, जो ताजर हैं, उनको सहूलत मिल जाएगी। उस सहूलत की वजह से दुआएं भी देंगे और यह हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अगर ये जंक्शन बहाल होता है और बहावल नगर की रौनकें भी बहाल होंगी और जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। जो बहावलपुर वकला हजरात जाते हैं अपनी पेशियों पर, वो भी टाइम से पहुंच सकेंगे और किरायों की ज़द में भी कमी होगी। जी, हारूनाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जिसने हमेशा जमहूरी और सियासी इक़दार को फ़रोग़ दिया है। पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निकाल सकती है, जिससे मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी की जानिब से मुनक्किदा यौम तासीस की तकरीब में सिटी सदर हारूनाबाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़ीर हैदर शाह और मजदूर यूनियन विंग के सदर इकबाल भट्टी और दीगर अहदेदारों समेत जैलों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक आम पाकिस्तानी की जमात है जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को यकसा हुकूक देने समेत पाकिस्तान में मुस्तहकम और पायदार जमहूरियत के लिए कोशां हैं। और यौम तासीस के रोज़ हम अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और कोशिशों को बरवकार लाते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकपतन पुलिस ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने वाले 9 डकैत गैंग्स के 39 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 95 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अयूब चावला की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने गुज़श्ता माह 9 खतरनाक डकैत गैंग्स के 39 डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत का कहना था कि पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों से जराइम की शर्रा में कमी वाक़या हुई है। एक महीने में तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख का माल मसरूका 9 गैंग के मुल्जिमान से बरामदगी की गई। इसमें तकरीबन हमारे पास 1 करोड़ 95 लाख के करीब नकदी है, एक कार है, 80 मोटरसाइकिल है, 90 तोले सोना है और 10 तोले चांदी इसमें शामिल है। इसके अलावा 54 के करीब माल मवेशी भी इसमें शामिल है। पाकपतन पुलिस इस कोशिश पर है कि पाकपतन के अंदर जराइम को ना सिर्फ कम किया जाए बल्कि जो जराइम हो चुके हैं और उसमें जो माल लोगों का लूटा गया है उसकी भी बरामदगी इंश्योर करके असल मालकान के हवाले किया जाए। डाकुओं से बरामद होने वाले 1 करोड़ 95 लाख की नकदी, 94 तोला सोना,
80 मोटरसाइकिलें, 54 मवेशी, एक कार, 14,000 मोबाइल फोन्स वारसान के हवाले कर दिए गए। महकमा ने बड़ी एफर्ट करके जी मेरिया बोरियां लभेइयां ने जी 3 लाख दी मालियत आईयां ते मेरिया बोरियां जी 3 लाख कीमत ही मैंने वापस कर दी गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान 179 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 88 किलो चरस, 1755 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि 292 इश्तिहारी मुजरमान को गिरफ्तार करके जदीद असला बरामद कर लिया। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। कबीरवाला तहसील कॉम्प्लेक्स में अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलम ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में रेवेन्यू से मुतालिक शहरियों की शिकायत का मौके पर ही अजाला किया गया। अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलम ने साइलिन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में साइलिन ने रेवेन्यू से मुतालिका मसाइल पर अपनी दरख्वास्तें पेश की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में अवामी मसाइल एक ही छत तले हल किए जा रहे हैं। अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फराहम किया जा रहा है। खुली कचहरी में रेवेन्यू का मुकम्मल अमला भी मौजूद रहा। CEO कॉरपोरेशन मुसर्रत अब्बास की तकरीब दावत वलीमा में सियासी समाजी शख्सियात समेत ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम इस रिपोर्ट में। CEO कॉरपोरेशन मुसर्रत अब्बास की दावत वलीमा में सियासी, समाजी, सहाफ़ती, कारोबारी शख्सियात की शिरकत। इनके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। दावत वलीमा तकरीब मकामी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब में एडिटर रोज़नामा लहर साहिल, सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन शेख रमज़ान नदीम, डिवीजनल सदर इरफान अलमानी, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन राजपूत, साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह, सैयद इमरान शाह, शेख मोहम्मद अली, सरवर सिद्दीकी, साबिक MNA व सीनेटर हाफिज अब्दुल करीम, साबिक मेयर शाहिद हुसैन चाड़िया, डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद, सरदार अहमद खान लगारी, साद राजपूत, मुमताज़ खोसा, GM बाबा फरीद, फ्लोर मिल, साबिक डायरेक्टर लाइफ स्टॉक AD खोसा, अल्लम चाय खोसा समेत शहरियों की कशीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब आपको बताते हैं कि शकरगढ़ बाबा गुरु नानक साहब करतारपुर में कायम पाकिस्तान की पहली सिख आर्ट गैलरी सिख यात्रियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। शकरगढ़ करतारपुर आर्ट गैलरी खोलकर करतारपुर इंतज़ामिया ने सिख यात्रियों के दिलों को मोह लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक से। मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ करतारपुर बाबा गुरु नानक साहब के दरबार पर। मैं इस वक्त बाबा गुरु नानक दरबार में सिख पाकिस्तान की ये वाहद सिख आर्ट्स गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर हैं ये गैलरी के। हम उनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे। जी सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान सिख आर्ट गैलरी में, जो PMU की वसासत से या उनके ताउन से री ओपन हुई है। इस वक्त 27 से ज़्यादा यहाँ पे मुसलमान पेंटर्स का काम मौजूद है और ये पाकिस्तान के सबसे लीडिंग किस्म के आर्टिस्ट हैं, जिसमें खतात भी हैं, पेंटर्स भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है। ये दुनिया में इस आर्ट को बहुत सराहा गया है। अब ये एक बड़ा अपहिल टास्क था, बड़ा मुश्किल काम था कि बाबा नानक के फ़लसफ़े को किस तरह पेंट करना है। बाबा नानक और उनके बाकी गुरु साहिबान के फ़लसफ़े को हमारे आर्टिस्टों ने बड़े खूबसूरती से इसको पेंट किया है, जो आप देख सकते हैं। इस वक्त हज़ारों सिख यात्री यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इसको महसूस होकर गए हैं। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया और बहुत सारे इंटरनेशनल जो उनसे बाहर से हमारे फॉरेनर्स आए हैं, उन्होंने भी इस आर्ट गैलरी को बहुत मोहब्बत से और बड़ी अकीदत से देखा। अब चेंज करके जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर जो कि गैलरी के डायरेक्टर हैं उनकी बात सुनी। पाकिस्तान की सिख यात्री की पहली आर्ट्स गैलरी है जहां पर मैं मौजूद हूं। बाहर से फ़ॉरेन मुल्कों से जो सिख यात्री यहां पर आते हैं, तस्वीरें देखते हैं और अपने आप को सहराते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो आर्ट्स गैलरी में तस्वीर हैं ये पाकिस्तान के मुसलमानों ने ये आर्ट्स गैलरी की तस्वीरें बनाई हुई हैं जी। और अब आपको बताते हैं कि सर्दी की आमद और सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा देसी गुड़, जिसे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। जदीद दौर में भी पुराने रिवायती तरीके से गुड़ बनाने का अमल जतोई में जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जतोई से उज़ैफ़ा आरबी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां चीनी गरीब की पहुंच से दूर है, वहीं देहातों में काश्तकार अपने हाथ से गुड़ बनाकर अपनी जरूरियात पूरी करते हैं।
गन्ने के रस से तैयार होने वाली कक्को जो कि शहद की तरह गाढ़ी होती है, जो कि गरीब के लिए किसी शहद से कम नहीं, और रिवायती अंदाज से बनाया जाने वाला गुड़ कई घंटे आग पर पकने के बाद गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है। हाँ जी, मेहनत बड़ी है, ना मजदूर भी लाए थे, आप भी मेहनत करते, छोटे बड़े सारे, एक आदमी का काम नहीं, ये 4-5 आदमी हैं। पहले हम इसके लिए ना पहले मशीन लाते हैं, आप चीनी देसी बनाते हैं, वो तो ज़माना चला गया। पहले सारे को मशीन होती है, खुद लोगों की खांड बनाते हैं, चीनी तो खुद अपनी चीनी बनाते स्पेशल करके। गुड़ बनाना थे बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी मेहनत तलब है, लेकिन अफसोस है कि साडा मुल्क एक ज़री मुल्क होने के बावजूद सानू किसानों को मुआवजा सही नहीं मिलता, जिस वजह तो अक्सर लोग जिहड़े ने किसान के पेशे तो पिछे हटते जा रहे हैं, जिहड़ा साडे मुल्क वास्ते एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक साडा मुल्क ज़री होने के बावजूद ना किसानों को उन्होंने सही मुआवजा मिलता है। अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ दोस्तों, अजीजों, अकारिब और रिश्तेदारों के लिए खुश मेवा जात डालकर तैयार किया जाने वाला गुड़ बतौर तोहफा भेजा जाता है। मोहम्मद हुज़ैफा, आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और DPO रजा सफदर काज़मी की ज़ेर सदारत एड्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। एड्स से बचाव के हवाले से आगाही वॉक भी की गई। एड्स एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन ये काबिल इलाज मर्ज़ भी है, इससे मुतालिक आगाही फैलाने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में HIV मरीज़ों को इलाज मुआवजे से मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से एड्स बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह नौजवान तबके में मंशियात का बेपनाह इस्तेमाल और जिनसी बेरारवी का अमल दखल है। उन्होंने कहा कि एड्स से बचाव का वाहिद हल अवाम उन्नास में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में ही है। सादकाबाद में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों ने ख़ास तौर पर बच्चों ने शिरकत की है। दरख्त लगाना सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह सादिकाबाद में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। दरख्त हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जिससे माहौल साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रहता है। ये इंसानों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। सादिकाबाद में भी शजरकारी मुहिम बड़े लेवल पर शुरू कर दी गई, जिसमें बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों ने मिलकर हिस्सा लिया। खुशी हो रही है और हम इंशाल्लाह आज से अपना सादिकाबाद से शजरकारी का मुहिम जो है वो इसका आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह सादिकाबाद को हम ग्रीन एंड क्लीन बनाएंगे। शजरकारी जो है ये सदका जारिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस इंसान मुसलमान ने दरख्त लगाया और फसल बोई और उससे किसी परिंदे ने चंद परिंद और जो पाए और इंसान ने अगर मुस्तफीद हुआ, को फ़ायदा हासिल हुआ, जब उसने खाया तो वो उसके लिए सदका जारिया है। तो इससे जो है दरख्त लगाने से जो है वो काफ़ी जो है मौसम माहौल भी ठीक रहता है। ये दरख्त जो है ये आलूदगी जो है इसको जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे इंसान को सांस लेने में आसानी पैदा होती है और बहुत सारी बीमारियों से बचती है। इंसानों की बढ़ती हुई आबादी के सबब दरख्त नहायत ज़रूरी है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और माहौल को पाकीज़ा बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। चकवाल चौधा पार्क में तरबियत याफ्ता और हुनरमंद ख़वातीन के तैयार करदा मसनूआत को मुतारिफ करवाने के लिए चकवाल की तारीख में पहली दफ़ा मसनूआत की एक रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद हुनरमंद ख़वातीन की मौशी खुदमुख्तारी और उनके कारोबार को मज़ीद फ़रोग़ देना है। मज़ीद जानते हैं वसीम जहांगीर की इस रिपोर्ट में। चकवाल में पहली बार हुनरमंद ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल लगाए गए। नुमाइश में सरकारी इदारों और चकवाल की घरेलू ख़वातीन ने स्टॉल लगाए, जिसको चकवाल की ख़वातीन ने बहुत सराहा। हमने होममेड एक मिनी इंडस्ट्री बनाई हुई है घर में। मैंने कुछ आगे ख़वातीन से रखी हैं, हम लोग सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ मेवा जात है, हमारी नींबू है, 3 फीसद हमारी नींबू है, हम सेल और परचेज़ का काम कर रहे हैं। और आज चकवाल में जो फर्स्ट हमारी ये एग्जीबिशन हो रही है DC चकवाल साहिबा की तरफ से मुनक्किद की जा रही है, इसमें हम लोगों ने अपना स्टॉल लगाया है और हमारे स्टॉल पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे पास फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं
जितनी भी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये सारी हमारी हैंडमेड है। इसमें पाउच वगैरह बनाए जाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज करवाई जाती हैं, इसमें रेजन वर्क का, क्रेशिया वर्क का, प्रिंटिंग्स वगैरह, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, अचार चटनियाँ वगैरह, बेकिंग वगैरह के कोर्सेज, ड्यूटी वगैरह करवाई जाती हैं। इन 2 सालों में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि हमारे चकवाल में भी इस तरह का किया गया है प्रोग्राम, और ये स्पेशली खवातीन के लिए किया गया है। के लिए बहुत खुशाइन बात है कि यहाँ की जो लोकल खवातीन हैं उनको हमने इनकरेज किया कि वो सारे होम मेड बिजनेसेस जो वो करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर रही हैं और प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। हमने उनको इनकरेज किया कि वो यहाँ आके अपने स्टॉल्स लगाएं, हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई ताकि उनकी जो एबिलिटी या स्किल ऑलरेडी उनके पास है उसको हम फर्दर पॉलिश कर सकें। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन की खसूसी दिलचस्पी से नुमाइश में सैकड़ों विजिटर ने दिलचस्पी ली और खूबसूरत दिलकश एशिया की खरीदारी भी की। वसीम जहांगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, चकवाल। और अब आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से वॉक और तकरीब का इनेकाद हुआ है, जिसमें खुसूसी अफराद के मसाइल को उजागर किया गया। रैली में समाजी वर्कर्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। रहीम यार खान में माजूर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से शाही रोड पर दुआ चौक तक वॉक का इनेकाद हुआ, जिसमें माजूर अफराद, फलाही तंजीमों के नुमाइंदों समेत शहरियों ने तकरीब में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर पसरूर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सनत से वाबस्ता अफराद नस्ल दर नस्ल मुश्किलात के बावजूद बेहतरी की उम्मीद लिए इस शोबे से वाबस्ता चले आ रहे हैं। ज़माने कदीम के इस फन पर देखते हैं पसरूर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एजाज अहमद खोकर की इस रिपोर्ट में। लोहे और स्टील के बर्तन महंगे होने के सबब कदीम रवायत के हामिल मिट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा हो चुका है। पसरूर के खेतों से निकलने वाली मखसूस कुदरती चिकनी मिट्टी से बनी हांडी, परात, गिलास, कप और दीगर घरेलू एशिया के साथ शहरी मिट्टी से बने गुलदान, गमले, दीगर तज़ीनो और आइश की एशिया की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। देखिए, जिस तरह हर चीज़ महंगी हुई है वैसे ही बर्तन भी ज़्यादा महंगे हुए हैं। स्टील और शीशे के और ये दूसरे बर्तन जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, मिट्टी के बर्तन जो हैं ये दूसरे बर्तनों से निस्बतन सस्ते भी हैं और इनमें जो खाना पकाया जाता है उनकी लज़्ज़त जो है वो बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद होती है। पसरूर में बनने वाले इन मिट्टी के बर्तनों को मांग जहां पाकिस्तान के दूर दराज के शहरों में बढ़ चुकी है, वहीं पर लोग पसरूर की मिट्टी से बनी हांडी को बैरून मुबालक में बसने वाले अजीजों कारों को बतौर तोहफा भी बेचते हैं। जमाना कदीम के इस फन से वाबस्ता अफराद सदियों से नस्ल दर नस्ल बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब सजाए इस शोबा से मुंसलिक चले आ रहे हैं। ज़वाल पजीर होती हुई मिट्टी के बर्तनों की इस सन्नत में हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत एक बार फिर बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। काम जी मैं तकरीबन 50 साल ਤੋਂ कर रहे हैं। वालिद साहब उन्होंने कोलों ये सीखे है ते हिंदुस्तान दे पाकिस्तान बनने दे वेले दे काम जारी है। 6 कुछ देर बाद काम जिहड़ा ही ठप हो गया सी, एक सनत जिहड़ी ही ना खत्म हो गई, अद्धी हो गई सी ते ओ हुण जिहड़ी सनत जिहड़ी तकरीबन ये थोड़ी जी चली है, कारोबार चलिया थोड़ा जिहा, इहदे च कुछ बेहतरी आई है। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। और अब आपको बताते हैं कि पतौकी थाना सराय मुगल के गिरदोनवा में नौसरबाजों के जालसाजी के हमले, मुख्तलिफ देहात के मुतादिद मासूम औरतों को एहसास किफ़ालत के नाम पर लूटने वाला गिरोह रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। सराय मुगल खुफिया इत्तला मिलने पर SHO थाना सराय मुगल की हिदायत पर पुलिस चौकी हल्ला की बड़ी कार्रवाई एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के नाम पर मासूम और सीधी साथी ख़वातीन से हज़ारों रुपए बटोरने वाले नौसरबाजों, खातून समेत 4 मुसल्लह अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलज़मान के कब्जे से फेक लेटर पैड के अलावा 70,000 रुपये नकदी भी बरामद हुई। मुलज़मान घरेलू ज़रूरी एंट्री के बाद 1,000 रुपये फ़ी कस फैमिली लेते थे और यकीन दिलाते थे कि आइंदा एहसास किफ़ालत प्रोग्राम वाली रकम आपको मिल जाएगी।
کیونکہ آپ کا سروے مکمل ہو گیا ہے۔ مقامی پولیس نے نوسرباز گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔